مطلب ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ انہوں نے ایک عورت کی طرف دیکھا تھا. وہ عورت اس وقت پریگنیٹ تھی نا, تو جب عورت نے ان کی طرف دیکھا تو وہ ان کی جو چہرے کا وہ جو روب ہے وہ مطلب برداشت نہیں کر سکی, تو ان کا جو ابھی نیا نیا بیبی تھا وہ مطلب ڈیتھ ہو گئی اس کی. تو سر یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں, یہ جو صحابہ کی مطلب ایک روب ہے, دبدبہ ہے, اور ان کے پاس علم ہے, حکمت ہے, بہادری ہے, تو ایز اے ٹین ایجر مسلم مطلب یہ ہم کس طرح اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ آپ کے میں آخری سوال کا جواب دوں گا, ادروائز ہم جو اسپیس کا ٹاپک ہے اس سے بہت زیادہ ہم دور چلے جائیں گے. اگر آپ نے سوال کیا ہے تو اس کی رسپیکٹ میں لک میں آپ سے کہوں گا کہ آپ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے مشہور واقعات کی حقیقت, وہ پڑھیں اینڈ بی ریڈی ٹو بی سرپرائزڈ کہ ہمارے اسلام میں کتنے ایسے واقعات لوگوں نے خود اپنی مرضی سے گھڑ لیے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو واقعہ ابھی آپ نے بتایا ہے یہ میری نظر سے نہیں گزرا, اس پہ میں کوئی رائے نہیں رکھتا کہ ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بہت سے واقعات صرف صحابہ نہیں, جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں ہماری کتابوں میں. وہ جو بڑھیا تھی ان پہ معاذ اللہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اور ایک دن نہیں پھینکا, اور وہ یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی باتیں, بے سند باتیں ہیں یہ, اور ہم ان کو ڈسون کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ آپ صحابہ والا وہ کس طرح سے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, تو آپ کو اس غلط فہمی سے نکلنا ہوگا کہ سارے صحابہ ایک طرح کے تھے. صحابہ میں بہت سی ڈفرنٹ قسمیں تھی. دو میجر قسمیں تو آپ کو نظر آ جائیں گی, صحابہ کی جو سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے والے تھے اور جو روایت کی حفاظت کرنے والے تھے. یعنی کہ جو روایت کی حفاظت کرنے والے صحابہ ہیں ان میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ام المومنین سیدہ عائشہ ہیں سلام اللہ علیہا, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایجوکیٹرز تھے سو ٹو اسپیک, لیکن سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے والے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was an amazing leader. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں نہیں تھے, ان کے اسلام کا یہ اسپیشلزم ہے نا, یہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں نہیں تھے لیکن یہ سسٹم کو امپلیمنٹ. تو ہر صحابی کا اپنا ایک رول ہوتا تھا, کسی کا رول کیا تھا کسی کا کیا. تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ٹیلنٹ دیا ہے, آپ کو کیا ویلیوز دی ہیں بائی برتھ, تو آپ نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے فردر. دیٹ از ہاؤ یو بیکم. اگر آپ کی شخصیت میں روب دبدبا ہے تو آپ اس کو پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں غریب کی مدد کرنے کے لیے, حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے, اینڈ سو فورتھ. لیکن اگر آپ کی طبیعت میں تحمل ہے, ریسرچر ٹائپ ہیں, تو آپ کسی ایسے صحابی کی وہ دیکھیں, کیا نام ہے, کتنا بڑا نام میں لینا بھول گیا, جو روایت کی حفاظت کرنے والے, جو ایجوکیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی اکیڈمی, فارمل اکیڈمی تو نہیں تھی لیکن فار آل پریکٹیکل پرپز وہ اکیڈمی تھی. کیا نام تھا ان کا, دیکھو یار ابھی بات کرنے کا ان کا نام نکل گیا. ہی واز ون آف دا بیسٹ تحقیق کی دنیا میں, اور جو حفاظت ہے روایت اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 5000 کے اراؤنڈ وہ اپنے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی مجھ سے بھی زیادہ ہے. تو یعنی وہ آپ اپنی اسپیشلسٹ فیلڈ دیکھیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 1,44,000 صحابہ کی تعداد بتائی جاتی ہے, آخری جو جمعہ ہے جو خطبۃ الوداع ہے اس میں, تو اس خطبے میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 1,44,000 صحابی سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہوں. تو آپ اپنی اسپیشلسٹ فیلڈ ڈھونڈیں اور اس پر ترقی کریں. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. اب میں آگے بڑھنا چاہوں گا. اچھا زارش, آگے آپ کچھ کہہ رہی تھیں, آپ کی بات پوری ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ جی میرے ایک دو سوال تھے, لیکن میں نے ان کو لوگوں کو بھی میسج کیا ہوا ہے, وہ آئی تھنک 5-10 منٹ تک جوائن کرتے ہیں, پھر میں اپنے کوشچنس کنٹینیو کروں گی. وہ جو آپ کے فیوریٹ لبرلز ہیں؟ جی بالکل. جی سر وہ آتے نہیں ہیں آپ کے پاس, پتہ نہیں کیوں, میں تو میسج کر کے پاگل ہو گئی ہوں. بھائی میرے پاس تو صرف ہلکی پھلکی میٹھی میٹھی باتیں ہیں, میرے پاس بھی اگر نہیں آتے تو کہاں جانا چاہیں گے؟ ایگزیکٹلی. چلے مرضی ان کی. مہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. لیٹس موو آن. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں عتیب احمد اور ان کے بعد ڈاکٹر مصطفی ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود عتیب احمد صاحب. ویلکم آن بورڈ جناب. دیکھے گا کہ کہیں آپ میوٹ تو نہیں ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ویلکم, السلام علیکم. انمیوٹ کیجیے گا خود کو.
डॉक्टर साहब आपकी तरफ से टिक टिक की आवाज आ रही है, यकीनन आपकी आवाज भी आ जाएगी, फरमाइए अतीब साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं इससे पहले मैं दावत का काम यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहा था, तो मैंने बहुत से, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर सारे MBBS के स्टूडेंट हैं, वो पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल एलीट के अंदर उनका शुमार होता है, तो उनसे इंटेलेक्चुअली कुछ बातें होती थी या कुछ उनसे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता था। तो उससे फिर मैं ट्विटर पे आया, ट्विटर पे मैंने आपको देखा, तो मैंने कहा कि आज क्वेश्चन कर लूँ एक। मैं पहली दफा किसी ट्विटर स्पेस पे आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था ट्विटर स्पेस होती है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि देखिए, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत थोड़ी तादाद है, बहुत छोटी तादाद के अंदर एक बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि स्पेशल मिनॉरिटी है, जिन्हें हम जो कि इंटेलेक्चुअल एलीट में से ही होते हैं, और पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री की जो इंटेलेक्चुअल एलीट या इंटेलिजेंशिया है वो उनके हाथों में होती है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप उसकी एग्जांपल देखेंगे तो परवेज हुद भाई साहब हैं, या ये जो सैयद मुजम्मल साहब हैं, या वो एक जो हैं तैमूर रहमान, ये इस तरह के जितने ये कुछ स्कॉलर्स हैं कि जिनसे हमारी जो यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठी हुई यूथ है ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। अब ये इम्प्रेस क्यों है? सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं, इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब वो नॉलेज सही है या गलत है ये को पता, अब ये एक अलग डिस्कशन है। तो अब जब भी मैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कोई बात करूंगा, या कैपिटलिज्म या फेमिनिज्म को रिफ्यूट करूंगा, या जेंडर इक्वलिटी पे बात करूंगा, या LGBTQ के एजेंडा के अगेंस्ट बात करूंगा, तो मुझे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स में से, बॉयज में से, तो वो ज्यादातर आके मुझे बोलेंगे अच्छा आप ये कहते हैं, तो देखिए सैयद मुजम्मल साहब ये कहते हैं, अच्छा वो जो भी कहते हैं मैं कहता हूँ ठीक है आप उनका पॉइंट ले आए, उस पॉइंट को रिफ्यूट भी कर दूंगा, तो उनके अंदर एक चीज होगी कि देखो यार उसने बहुत ज्यादा इल्म हासिल किया, उसके पास बहुत नॉलेज है, उसने फलां का वो हवाला। तो उनको हम किस तरीके से बताएं कि देयर इज नो वॉर बिटवीन लॉट ऑफ नॉलेज एंड लेस नॉलेज, यानी ज्यादा नॉलेज और थोड़े नॉलेज के दरमियान वॉर नहीं है, वॉर है राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज के दरमियान। तो जरा आप मुझे बता दें कि चले जी, यहाँ पे फिर हमें एम्प्लॉय करने पड़ेगा एक टैक्टिक डिबेट का, और वो बड़ा जायज टैक्टिक है, बहुत ही वैलिड है कि अगर कोई आपको नॉलेज से इम्प्रेस कर रहा है तो आप उससे फिर ग्रेटर नॉलेज को आप प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई आदमी ये कहता है कि यार उसके पास बड़ा नॉलेज है तुम उसे कैसे गलत कह रहे हो, तो ये एक फैलेसी है, कहा जाता है आर्गुमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। तो आप उनको बताया करें कि दुनिया के जो इनसे भी बड़े बड़े इदारे हैं ना, इनसे भी बड़े बड़े इदारे, वो आपकी बात को गलत साबित करते हैं, इसलिए आप मुझे जो मेरा आर्गुमेंट है उसको एड्रेस करें, मुझे ये ना बताएं कि वो कोई आदमी जो है वो कितना बड़ा कितना उसने नॉलेज किया हुआ है और कितना इसने किया हुआ है। ये बेसिकली हमारा जो है ना, ये मैं इससे मुतासर नहीं हूं। अब आप उनको मिसालें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे दुनिया में साइंटिफिक पब्लिकेशन के दो जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें एक नेचर है और दूसरा है द रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी, इनका मोटो ही है न्यूलियस इन वर्बा। न्यूलियस इन वर्बा का मतलब है कि लिटरली इसका मतलब है कि टेक नोबडीज वर्ड फॉर इट। कोई जितनी मर्जी बड़ी अथॉरिटी क्यों नहीं है, आपने किसी की बात इसलिए नहीं सुननी कि उसके पास बड़ी अथॉरिटी है, आपने उसके आर्गुमेंट के मेरिट को देखना है। तो जब आपके सामने कोई नाम लेता है ना परवेज हुद भोए का जी, या किसी भी ऐसे आदमी का, तो आप उनसे कहें जी इनसे बड़े हैं रॉयल सोसाइटी वाले, वो कहते हैं अथॉरिटी से मुतासर नहीं होना, मेरिट पे मुझे बताओ। और ये खुद इनके कार्ल सैगन तो इनके मुरीदीन के पीरो मुर्शिद हैं, वो तो खुद ही कहते होते हैं कि आर्गुमेंट अथॉरिटी को मैं नहीं मानता, जो भी आर्गुमेंट अथॉरिटी देता है आई डोंट केयर, अथॉरिटी इज नॉट द स्टैंडर्ड। जी, तो बड़ी सिंपल सी बात है। और फिर एक बात मैं भी कहा करता हूँ, particularly रिवोल्यूशन पे बात करते हैं परवेज हुद भोए साहब, तो जब मैं उस पर से गलतियां निकालता हूँ तो लोग कहते हैं वो MIT से पढ़े हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं मान जाऊंगा आपको अगर आप MIT वालों से कहें कि परवेज हुद भोए साहब को आप इजाजत दें कि ये जो रिवोल्यूशन पे उन्होंने लेक्चर दिया है वो चला दें इंग्लिश में। अगर उन्होंने उसको अपने दरवाजे के पास फटकने भी दिया ना, तो मैं परवेज हुद भोए साहब को मान जाऊंगा। यानी कि जिस चीज का आप हमें दे रहे हैं ना, हमें दिखा रहे हैं कि
یہ بڑا ہوا ہے، وہ ہوا ان پہ ہی نہیں چلتا ہے. اس لیے ہمیشہ جو ہے ان کو یہ دو چیزیں یاد رکھیں. جب کوئی آپ سے ایسی بات کہ جی نو لیسن بیربا آئی ٹیک نو بڈیز ورڈ بیکاز دے آر دی اتھارٹی. اور دوسری بات ہے کہ یہ ایک فلیشیس آرگومنٹ، جیسے کہا ہی جاتا ہے آرگومنٹ کی اتھارٹی، کہ مجھے اس پہ کوئی نہیں ہے کہ کس نے کہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آرگومنٹ اس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. تھینکس ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. یو ویری ویلکم جناب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر مصطفی آپ کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. اچھا فیلا آرٹس، آئی کین سی یو کہ آپ یہاں پہ اسپیکر کے طور پہ موجود ہیں، بٹ آئی آلسو سی یو وہاں پہ اسپیکر کے طور پہ موجود ہیں، سوری لسنر کے طور پہ موجود ہیں. سو جی اسپیکر پر ہے وہ، تو ان کو آپ دے دیں. اچھا چلے پھر ڈاکٹر مصطفی صاحب سے معذرت، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو ڈاکٹر صاحب اور انتظار کی زحمت اٹھانی پڑے گی. معافی چاہتا ہوں. یس فیلا آرٹس، واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ ویلکم آن بورڈ. السلام علیکم سر، ایم آئی آڈیبل؟ وعلیکم السلام. یس یو آر. اوکے گریٹ سر. سر ایکچولی میرا سوال یہ تھا کہ کرنٹلی وی آر ہم انسٹاگرام پہ بہت زیادہ LGBTQ اور جو موومنٹ چل رہی ہے اس کے خلاف بڑے نا ووکل ہیں، اور ان کی طرف سے بھی ایک بہت زیادہ بیک لیش آتا ہے. اور ان کے جو مطلب کہ نا وہ کبھی بھی نا ہم سے جو ہے وہ ایک لاجیکل آرگومنٹ نہیں کرتے ہیں، الٹا ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمیں یا تو بلاک کر دیتے ہیں یا تو ہمیں جو ہے وہ پرسنلی ابیوز کرتے ہیں، تھریٹس کرتے ہیں. یہ والی سارے سسٹم ان کے چل رہے ہیں. جیسے کہ شہزادی رائے بھی جو ہیں وہ مسٹر زاد جن کا نام ہے، تو ان کا بھی یہی بالکل المیہ ہے نا. اور بالکل اسی طریقے سے جو ڈاکٹر تیمور لال ہیں، ان سے ایک دو دفعہ میری مطلب بہت ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات ہوئی. ایک ٹاپک ایسا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ بھائی قائد اعظم جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. تو میں نے بھائی ان کو میں نے 2-3 چیزیں ان کو صرف ایک بھیجی، کیونکہ میں نے اتفاق سی بات ہے کہ میں نے لیٹرز آف اقبال پڑھے ہوئے تھے، تو اس میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو کیا کیا لیٹرز لکھ کے دیے تھے. تو میں نے ان کی پکچرز لگا دی. میں نے بولا اگر وہ چاہتے بھی تھے اور لیکن قائد اعظم جو ہے وہ علامہ اقبال کو اپنا مینٹور بھی سمجھتے تھے، تو پھر یہ اپنے لیٹرز میں شریعہ کی نفاذ کی بات کیوں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے مجھے بلاک کر دیا. ہاں وہ کرتے ہیں ایسا، مجھے بھی ٹویٹر پہ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. سو مچ فار دا ٹالرنس اینڈ آل دیٹ. حالانکہ میں نے ان سے صرف ایک سمپل ڈبیٹ کی بات کہی تھی. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب سے ہم چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ بڑے عرصے سے قائد جیکنگ کی کوشش کر رہے ہیں. قائد جیکنگ بائی دیٹ آئی مین کہ یہ پاکستان کو سیکولر بنانے کے لیے قائد اعظم کو ہی انہوں نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. آپ لیٹرز میں نہ جائیں، کسی اور چیز میں نہ جائیں، صرف ان سے ایک سمپل چیز پوچھیں. جتنے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، ہود بھائی صاحب بھی اس طرح کی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں حرکتیں. ایک سمپل سی بات ہے کہ 1940 میں جو قرارداد لاہور ہے وہ منظور ہوئی، جو کہ بعد میں قرارداد پاکستان بن گئی. دسمبر جنوری میں 1945 اور 1946 اس میں الیکشن ہوئے، یعنی کہ یہ 4-5 سال ایک کمپین چلتی رہی. اس کے بعد پھر فیصلے ہوئے، تقسیم ہوئی، نقشے کئی طرح کے پرپوز ہوئے. ایونچولی پاکستان علیحدہ ہو گیا، انڈیا علیحدہ ہو گیا. ٹو کٹ اے ویری ویری لانگ اسٹوری شورٹ، ڈو یو ایون امیجن اور کین یو اینی پرسن جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان سیکولر ملک بننے جا رہا تھا، کتنا آپ کو بیوقوف ہونے کی ضرورت ہے یہ بات کہنے کے لیے یا لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ یہ 6-7 سال کی جو ڈیموکریٹک اسٹرگل تھی، آل انڈیا مسلم لیگ نون والے گھر گھر جا کے لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں ہم تمہارے لیے ایک سیکولر ملک بنانے جا رہے ہیں، چلو ہمیں ووٹ دو. ہاؤ اسٹوپڈ ڈز ون ہیو ٹو بی ٹو ایون بلیو ان دیٹ کریپ. وہ اس لیے کر رہے تھے. اگر یہ بات کہتے تو لوگ کہتے بھی انڈیا تو ویسے ہی جو ہے سیکولر ملک بننے جا رہے ہیں، ہم یہیں پہ رہ دیتے. دیٹ واز دا ہول پوائنٹ کہ ہم نے ایک سیکولر ملک میں نہیں رہنا ہے، ہم نے ایک اسلامی ملک بنانا ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ باقی ساری دنیا پاگل ہے، ہم جس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو بیوقوف بنا لیتے ہیں سب کو بنا لیا کریں گے. اور اسٹوڈنٹس آپ کی عزت میں آگے سے چپ کر جاتے ہیں اور آپ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ لوگ عقل والے ہو گئے. لٹرلی جسٹ تھنک دس لاجیکلی کہ وہ الیکشن میں کمپین کیا کر رہے تھے. بنگال میں 200 اس میں سے 194 سیٹیں مسلم لیگ کو اس لیے ملی تھی کہ وہاں پہ وہ سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے. 90 سے زیادہ اسپیچز ہے قائد اعظم کی آن ریکارڈ. ایک دفعہ ایک لفظ سیکولر دکھا دینا اگر تو ان کی بات میں کچھ نہ کچھ سچائی آ جائے گی. لفظ تک نہیں دکھا سکتے. خیر
इस पे अब मैं अगर किसी ने ये अगर डिबेट करनी है तो एक तारिक जान साहब की किताब सेकुलरिज्म है, वो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। वैसे जिम में जाकर कहा था, मैं नहीं करता, लेकिन इफ यू रियली वांट टू हैव द इनसाइट ऑफ इट, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन हैव। एनीवे, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इसके। सॉरी, आपने 2-3 पॉइंट्स रेज किए थे, मैं जल्दी एड्रेस कर दूं कि ये लोग लॉजिकल बातें नहीं करते, ये सबको पता है ये, और ये आयरनी है। तो एक जमाना होता था, ये लोग कहते थे कि यार आप लोग साइंस की बात करो, आप फिलोसफी की बात करो, पढ़ी लिखी बात करो, आप क्यों हर बात में बदतमीजी करते हैं, तो अड्डा भला हो जाए। अब हम आपसे कहते हैं ये साइंस की बात करें, आइए फिलोसफी की बात करें, आइए रैशनैलिटी की बात करें, आप गालियां दे रहे हैं। ये आयशा मोहम्मद के साथ जो उन्होंने किया है, पूरे जत्थों के जत्थे इकट्ठे होकर उसको थ्रेटन कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, पर्सनल गालियां दे रहे हैं। क्या किया उस बच्ची ने? सिर्फ इतना ही किया है कि उसने कहा है कि पाकिस्तान में जो मजहबी तंजीमें हैं उनको, इन लोगों का, जिन लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है, इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि वो इन पे कानून के मुताबिक वो इन पे कोई केसेस वगैरह कर सके। केसेस करने में क्या प्रॉब्लम है? वो कभी लंदन मेट को बता रहे हैं, कभी किसी को बता रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, और वो अपनी जगह पे डटी हुई है। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के पास अगर आर्गूमेंट्स हों तो ये आर्गूमेंट दें ना, गाली क्यों दें? आर्गूमेंट का जवाब गाली जब होता है तो सब दुनिया को पता चल जाता है, यू हैव नथिंग टू से। दूसरे, आपने सैयद मुजम्मल साहब की बात की, उनकी भी यही हालत है। मैं बखुदा सेल्फ बोस्टिंग में, ये चीजें अच्छी नहीं हैं, लेकिन मुझे लोग इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि अगर सैयद मुजम्मल साहब से कोई कहे कि आप कैसे से डिबेट करें, तो वो भी किसी बंदे को ब्लॉक कर देते हैं, नहीं करते किसी के साथ ये डिबेट के लोग, क्योंकि इन्हें पता है ये, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, मैं नहीं जाना चाहता किसी के साथ पर्सनल, जिन लोगों को लॉजिकल पॉजिटिविज्म और मॉरल रिलेटिविज्म का भी फर्क नहीं पता, अब मैं नाम नहीं दूंगा ये कि किसने किया था, अगेन वो बात पर्सनल हो जाती है, वो भी हमारा फिलोसफर बना हुआ है, वो भी बता, वो बात मॉरल रिलेटिविज्म की कर रहा होता है, टाइटल उसके ऊपर लॉजिकल पॉजिटिविज्म का लगा रहा होता है। क्यों? उसे पता है कौन सा जिसने फॉलो अप करना है। तो ये डिबेट्स में क्यों आएंगे? तो डिबेट्स में तो एक बंदे मेरे मदा पकड़ा जाता है कि जहां आप जो बात कर रहे हैं सिरे से ये प्रेमिस ही गलत है। दैट्स व्हाई दे डोंट डिबेट्स। ये गालियों के पीछे छुपते हैं, तज़हीक के पीछे छुपते हैं। ट्रस्ट में आखिरी बात, इनको स्नोफ्लेक्स कहा जाता है किसी वजह से, और वो यही वजह है। जी सर, बिल्कुल ठीक ना। मतलब कि इल्म में एक बात लानी थी कि मैंने और बिलाल ने कुछ दिनों पहले, मंथ्स पहले ना, एक UNDP की रिपोर्ट थी जिसमें पूरा HIV का जो पाकिस्तान में जो है वो एजेंडा को कैसे फैलाया जाएगा कि HIV की फंडिंग्स आएंगी HIV के नाम पे, और उसके थ्रू होमोसेक्सुअलिटी को आम किया जाएगा। तो हमने एक UNDP की जो ऑफिशियल रिपोर्ट थी उसके वेबसाइट पे वो निकाल के एक सिंपल सी पोस्ट बनाई थी और इंस्टाग्राम पे हमने अपलोड करी थी। उसके बाद उसी दिन, नाम है उनका आयशा मुगल, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है वो, उनके साथ मेंबर था चैनल। तो सॉरी, आप थोड़ा सा बैक ट्रैक कीजिएगा, आयशा मुगल से दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, आपकी आवाज खत्म हो गई थी। I think she should have she must have rejoined it. हाँ, उनकी आवाज तो टोटली खत्म हो गई है, गायब हो गई है। She must rejoin it. लाजमी है। ये ट्विटर ऐसे एल्गोरिथम्स लगाए हुए कि फलां का नाम ले तो आपकी आवाज गायब हो जाए। how is that for a conspiracy theory? सर, हमारे पास रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन अगर हम आगे जाएं, फिलहाल तो रहेगी, वो रीज्वाइन कर ले तो हम उसको ले लेंगे, या फिर चेक अगर आवाज ठीक हो। फिर बच्चे एक दफा आप ट्राई कीजिए, अदरवाइज फिर आप रीज्वाइन कर लीजिए। Am I audible now? You are now, yes. एक्चुअली मैं बोल रही थी कि जो आयशा मुगल जो है वो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, ठीक है ना। उन्होंने बहुत सरगर्मी से एक UNDP की रिपोर्ट बनवाई, HIV एजेंडा को कैसे पाकिस्तान में नॉर्मलाइज किया जाए थ्रू द फंडिंग्स। तो हमने वो रिपोर्ट जो है वो सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट बना के जो है वो एक्सपोज कर दी आम लोगों में। तो उन्होंने वो पोस्ट देखी, स्टोरी देखी, तो उन्होंने क्या किया, फौरन से UNDP की ऑफिशियल वेबसाइट से वो रिपोर्ट डिलीट करवा दी विद इन तो ये है इन LGBTQ वालों के काम, कि ये काम भी करते हैं लेकिन ये चाहते भी नहीं कि आम आवाम को हमारा पता भी चले, और इसमें शहजादी राय जो है वो मुलव्विस हैं। ये चले हम
इल्ज़ाम इस तरह से नहीं लगाएंगे, उसके और कई उसके तरीके हैं। शहजादी राय से मेरी जो डिबेट थी उसमें शहजादी राय ने कहा मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैंने उनसे कहा था कि जरूर बताइएगा कि जो आप रेम्बो फ्लैग लगाती हैं ये भी हम जिस तस्वीर कहीं सपोर्ट कर उसको आप प्रमोट करने के लिए तो नहीं लगाती या लगाते, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया था। बाकी ये कोई नई बात नहीं है जो आपने कही है, अब बिल्कुल आपने दुरुस्त करवाया। मैं आपकी बात में एक चीज ऐड कर दूं कि आयशा मुगल ये इल्गा एशिया की जो रिपोर्ट कंट्री रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में थी उसी में ही हमें पता चला था उनकी वेबसाइट से ही कि आयशा मुगल जो है ये पाकिस्तान में इल्गा एशिया की जो है ये रिप्रेजेंटेटिव बीइंग कंट्री हेड ये साहब रहे हैं। तो वो जब रिपोर्ट उसके बाद वो इतनी जल्दी से वेबसाइट से वो डेटा गायब हुआ और वो रिपोर्ट गायब हुई, लेकिन हमने ये बात पब्लिक करने से पहले रिपोर्ट डाउनलोड कर दी थी, वो आज भी हमारे पास है, जिसमें औरत मार्च का किरदार भी लिखा हुआ है, जिसमें स्टूडेंट पर्सनैलिटी मार्च का भी जिक्र है, जिसमें सबका जिक्र है कि ये लोग पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो ये इस तरह से रिपोर्ट गायब कराना ये कोई नई चीज नहीं है। दिस इज व्हाट टू बिलाल भाई ओ बिलाल भाई कैसे म्यूट करूं मैं आपको? मैं कहता हूँ वो फर्स्ट लीव कर गया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मुस्तफी वेट कर रहे हैं काफी देर से। डॉक्टर साहब मैं माइक आपकी तरफ में लेके आता हूँ। फिर बच्चे थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत शुक्रिया। आप आते जाते रहिएगा, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होने से ही बातें आगे बढ़ती हैं। डॉक्टर मुस्तफी साहब वेलकम ऑन बोर्ड। जनाब क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो खुद को अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे रहिए। सॉरी आई शुड हैव बीन जेंडर न्यूट्रल ऑन दिस, आई एम वेरी सॉरी। मैंने आपको मैस्कुलिन टोन में मैंने आपको रखा, वेरी वेरी सॉरी जी। वेलकम ऑन बोर्ड। नो प्रॉब्लम सर, जीते रहिए। सर मेरे 2 क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट टाइम आपकी स्पेस ज्वाइन की है। एक बात जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे RAT के, जिस तरह हम लोग हर चीज मौलवी के ऊपर डाल देते हैं, ऑफ कोर्स ये बात सच है, लेकिन सर माजरत के साथ ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हम लोग जो कहते हैं कि बच्चों के साथ ज्यादती होती है, इवन शर्म की बात है। मैंने अपने एक मसले में 3 केसेस देखे थे, मैं छोटी थी, उसको समझ नहीं आती थी कि इश्यूज क्या बने हुए, गाँव में इतना तमाशा लगा हुआ है। सर थोड़ी सी मतलब थोड़ा गाइड कर दीजिए। हम लोग अपने शायद मदारिस के निसाब में तब्दीली मतलब किधर मेन इशू है, तो हम लोग किस तरह चीजें थोड़ी अवॉइड कर सकते हैं। अब मेरा भाई हिफ्स करना चला, हमने उससे खुद अपनी मस्जिद में नहीं हिफ्स करवाया कि मतलब बंदे को एहतियात करनी चाहिए, प्रॉब्लम की बात है। ऑफ कोर्स घरों में होनी चाहिए दीनी तरबियत, एक बात। फिर उसने कहा था मेरे फ्रेंड्स करे, लेकिन हमने उससे नहीं करने दिया। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि जिस तरह अभी जिस तरह आप लोग लीड्स की बात कर रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, इस समय अगर डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं हमारे आजकल, तो सर वहाँ पे कोई अस्तगफुरुल्लाह कोई बच्चा गया है या किस तरह के रुझान है, तो उनको इजीली बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, चीजें डिस्कस बिल्कुल नॉर्मलाइज किया हुआ है। तो आप क्या कहते हैं कि इन चीजों से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, मतलब ऐसे बंदों को थोड़ा सा बंदे को रिजर्व रहना चाहिए, या उनको इजीली एक्सेप्ट करें, जो उनके व्यूज सुने, मतलब क्या चीज बेटर है सोसाइटी के लिहाज से और इस्लाम के लिहाज से? बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 चीजें हैं। पहली जो आपने कही कि जो मदारिस में मस्जिदों में इस तरह की बातें होती हैं, एब्सोल्युटली देखें उनको हम अवॉइड करेंगे, पर्दा डालेंगे तो उससे मसला हल नहीं होगा। मैं ऑल आउट मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों पे केसेस होने चाहिए, ऐसे लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, शरी सजाएं मिलनी चाहिए, एब्सोल्युटली। लेकिन फिर हम लिबरल्स को दूसरे एंड पे खड़ा ना देखें कि नहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इनको शरी सजाएं ना दें, मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैं तो कहता हूं, मेरी तो कई दफा इस बात पे मीटिंग्स में ये बात मैं कह चुका हूं कि हम क्यों किसी ऐसी प्रैक्टिस को हम छुपाने की कोशिश करें। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन। एक हरामकारी हो रही है और ऐसी जगह पे हो रही है जहां पे लोग इस्लाम पढ़ने जाते हैं, तो उन लोगों को तो इबरत का निशान बनाना चाहिए, एब्सोल्युटली। कोई उसमें किसी आदमी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा केयरफुल भी रहना चाहिए। मेरी आदत है कि मैं डेवलपिंग न्यूज पे तबसरा नहीं करता। ये कल परसों से एक खबर बड़ी चल रही थी कि पाकिस्तान में फलां मदरसे में ये हो गया और ये बचा, और लिबरल्स ने ये खबर वाली बात के साथ उठा कि उसे कैसर साहब इस पे भी बात करो, इस पे भी करो। हालांकि उनमें से अक्सरियत को पता है कि मैं डेवलपिंग न्यूज पे नहीं करता। मैंने कवर वाली खबर पर पहले दिन बात नहीं की थी। जब तक भी तस्दीक ना आ जाए इंसान को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। तो आपकी बात आगे जाती है तो वो सदका जारिया बनती है या गुनाह जारिया बनती है, तो इंसान को एहतियात करनी चाहिए। मैंने इस पर बात नहीं की, लेकिन आज खबर आ रही है, और आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अब ये ऑफिशियल मामला हो गया कि FIR दर्ज हो चुकी है। तो पाकिस्तान की जो स्टेट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस पर ये आ चुकी है, तो अब मैं बात इस पर कर सकता हूँ। आज पता चला है कि वो सारी की सारी खबर ही झूठी थी। उस बच्चे को जो उलमा हजरात वहां जिन पे इल्जाम लग रहा है
वो उस बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, वो उसको जो रेस्क्यू आई थिंक 1122 या 2211 जो नंबर है उस पे, अब ये रेस्क्यू वाली टीम में से किसी बने बच्चे की कंडीशन देखी जिसने कांच खाया हुआ था, तो उसने खबर फैला दी और उसके बाद जितने लिबरल्स पाकिस्तान में हैं सारे वो देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है। और अब जबकि ऑफिशियल एक FIR दर्ज हो चुकी है, सारे के सारे चुप है, बिल्कुल ऐसे जैसे आयशा अकरम वाले वाक़े पे चुप हुए थे मीनार पाकिस्तान वाला, बिल्कुल ऐसे जैसे ये कब्र वाले वाक़े पे उसको एकदम से उनको सामसूंग गया था। खैर सामसूंग से मतलब ये है कि उन्होंने माजरत नहीं की थी, बल्कि सिर्फ ये कह दिया था एक दूसरे पे, नहीं मुझे फलाने बताया था फलाने, और एक दूसरे के दिफा में आ गए थे और अब इसको भी चुप करके बैठ गए हैं। तो हमें इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जहां पे गलत होता है वी मस्ट कंडेम इट, वी मस्ट परस्यू इट। शहजादी राय ने भी ये बात कही थी, मैंने उसे ऑफर की थी कि ये एक जॉइंट लीगल वेंचर करते हैं, जहां से खबर निकलती है मैं और आप मिलकर उनके मौलवियों पे केसेस करते हैं, सर किसी को गलत फहमी ना रहे। जी सर। माजरत आपके मैं रुकावट डाल रहा हूँ, डॉक्टर यासिर नदीम साहब मौजूद हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें आप खुद ही डील कर लें, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा था, तो उनको ले जाए वो उनकी मतलब हम सुनेंगे तो बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। मैं बहुत ही माजरत चाहता हूँ, मैं असल में नीचे देख नहीं रहा होता बात करते हुए, मैं आगे पीछे देख रहा होता हूँ, बहुत नहीं मसला, मुझे अंदाजा हो। डॉक्टर साहब मैंने उनको देता हूँ अगर वो एक्सेप्ट करना चाहें। जी मैंने उनको इनवाइट कर दिया है, ठीक है सर, है, बल्कि वो बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं। उनसे ना कई चीजें मैंने उनसे आज प्राइवेटली कहनी थी, चलिए अच्छा मैं इसे पब्लिकली कह लेता हूँ लेकिन आपका ये जुमला पूरा करूँ। वेलकम मुफ्ती साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो एज ए लिसनर आया था, मुझे नहीं मालूम था कि एकदम आप मुझे माइक थमा देंगे सर आपने कटहरे में खड़े होना है, इसलिए कि मैं आपकी जगह बड़ी देर से कटहरे में खड़ा हो रहा हूँ। हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी अदालत में, तो वो कह रहे हैं बुलाएं मुफ्ती साहब को, कि मैं हमेशा आपका नाम ले लेता हूँ। खैर मैं बताता हूँ वो क्या इशू है जी। ये अभी जो हमारी डॉक्टर साहब जो हमारी बात कर रही थी, एक तो मदरसे की बात थी, शायद दूसरी क्या पॉइंट उन्होंने रेज किया था? सिर्फ मदरसे की बात ही कर रहे थे, वो बच्चे वाला जो सीन है वो खुद ही वो उसके पर है। उसके बाद डॉक्टर साहब आपने एक और बात भी कही थी। जी सर, मैंने ये बात की थी कि जो हमारे बच्चे या यंग जो भी हैं जो कहते हैं कि हमारा रुझान मतलब हम लोग गे हैं, हम लोग लेस्बियंस हैं, वो फ्रीली डिस्कस करते हैं, तो ऐसे लोगों से मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा, कि या फिर जी वो बच्चे हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाए तो लोग कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो, मुसलमानों में बर्दाश्त नहीं चाहिए। कमाल की बात है कि ये मैं मुफ्ती यासिर साहब के हवाले से ही बात करना चाह रहा था और वो तशरीफ भी दिया है, इसका मतलब है कि एंडोर्समेंट अल्लाह ताला की तरफ से है कि हाँ करें। देखें ऐसे बच्चों के साथ उठना बैठना, अगर तो आप एक मेडिकल साइकोलॉजिकल सेटिंग में है कि हम इनको डिसोन ना करें बल्कि इनकी साइकोलॉजिकल हेल्प करें, कोई बुरी बात नहीं है। उसके अलावा हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हम ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं इनकी स्ट्रीम्स में जाया करें या जो इस्लामोफोब्स हैं उनकी स्ट्रीम्स में जाया करें, तो मुफ्ती यासिर साहब एक बात बताया करते हैं कुरान के हवाले से कि जो उन लोगों के साथ उठता बैठता है वो नहीं जैसा, उसका मफहूम ये है। तो अगर आप मेडिकल सेटिंग के अलावा साइकोलॉजिकल सेटिंग के अलावा इन लोगों में उठते बैठते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, एज अ कल्चरल नॉर्म एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर कुरान का फैसला जो है वो यही है कि फिर आप और उनमें कोई फर्क नहीं। मुफ्ती साहब इस पे मेरी पोजीशन इंप्रूव कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखें, एक तो ये है कि आजकल जो सूरत हाल चल रही है LGBT के हवाले से, तो इसमें दो तरह की टर्मिनोलॉजीज उनको जहन में रखना चाहिए। एक है सेम सेक्स अट्रैक्शन और एक है सेम सेक्स बिहेवियर। सेम सेक्स अट्रैक्शन बहुत सी मर्तबा माहौल की वजह से भी हो सकता है और बहुत सी मर्तबा वो नेचुरल और फितरी तौर पे भी हो सकता है। इसके ताल्लुक से कोई शरई तौर पर बिल्कुल वाज़ेह गाइडलाइन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये इंसान के अंदर नेचुरल हो सकता है। लेकिन जो चीज हराम है वो है सेम सेक्स बिहेवियर। चूंकि जब बिहेवियर का मतलब ये है कि आपने फिर उसके ऊपर अमल किया, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक आदमी अपने दोस्त से ये कहे कि मेरा दिल फलां लड़की पर आ गया है और मुझे उससे नाजायज ताल्लुक कायम करना है, तो अगर उसका दोस्त मुखलिस होगा तो वो उसको समझाएगा कि भाई ये हराम है, गलत है, अखलाकियात के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि जो सेम सेक्स अट्रैक्शन में मुब्तला है, बिहेवियर में नहीं अट्रैक्शन में मुब्तला है,
اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ایڈوائس اس کے لیے فائدہ مند ہوگی یا آپ کی کاؤنسلنگ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، تو آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے. زبردست جی، تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. اوکے جی، آپ کو انڈورسمنٹ کی مل گئی ڈاکٹر صاحب.